So, first we have a very quick introduction of stages of becoming CS. So, ये तो सबको पता ही होगा कि CS कैसे बनते थे पहले. First CS Foundation, then CS Executive, CS Professional, and then we become ACS. So now the process has been changed. You have to give CSET for getting entry to CS Executive, then CS Professional, and finally ACS. So CSET, which has been introduced by ICSI, is mandatory for all candidates, all the aspirants who want to get entry to CS Executive Program of ICSI needs to give CSET. And this has also become mandatory for all the graduates and postgraduates which were previously exempted from uh, giving CS Foundation. The graduates were eligible for direct entry into CS Executive, but now they also need to go through CSET. So eligibility, it is one and the same, 10 plus 2 examination or equivalent. It can be by the candidates who have already passed or who are appearing. Exemptions. There is a big change in exemption. Exemptions have been given to the candidates who have passed the final examination of ICAI or final examination of ICMAI. But the good news is that all those students who have already given CS Foundation program need not to give CSET. They are directly entering into CS Executive level. Now we'll have a quick look to what CSET is. First, it is computer-based test. It will be conducted in a single day. आपको अलग अलग दिन जाके एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा. एक दिन में complete examination होगा. Total duration will be of 120 minutes and total questions will also be 120. तो आपको 1 मिनट मिलेगा हर एक क्वेश्चन करने के लिए. बहुत अच्छी न्यूज़ है, there will be no negative marking and सारे क्वेश्चन MCQ पैटर्न पे होंगे. But only difference which has been introduced this time is the ICSI will conduct 15 minutes Viva Voce, which will be based on artificial intelligence as informed by ICSI. अब हम आते हैं सीसेट की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे जो है उसका सिलेबस. सो हमारे सिलेबस में देर आर 4 पेपर्स: बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड करंट अफेयर्स. तो करंट अफेयर्स के 2 पार्ट हैं. 20 मार्क्स का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा एंड 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल वाइवा वोस होगा जिसमें आपकी प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स टेस्ट की जाएंगी और ये वाइवा वोस होगा 15 मिनट्स का. सो बिजनेस कम्युनिकेशन आपका पेपर 1 है जिसमें ओनली 35 क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के. एंड सिमिलर चीज़ें होंगी आपके लीगल एप्टीट्यूड में, इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में एंड करंट अफेयर्स में. करंट अफेयर्स में आपको 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे और वो 15 क्वेश्चंस आएंगे, राइट? So before understanding the syllabus in detail and how we need to prepare for each and every paper, we'll first understand what Viva Voce is and what ICSI is expecting from the conducting Viva Voce. So first thing is that it is not yet clear whether it will be conducted simultaneously or immediately after CBT, MCQ based examination. But the thing which ICSI has made very clear that it will be conducted on a same day. And they may use some artificial intelligence mode or they'll use the recorded videos at designated test centers. They can give an on-spot topics for writing paragraphs, a number of things. But the important thing is that in Viva Voce, they'll test your presentation and communication skills by whatever mode they can decide. So 3 चीज़ें हैं ICSI चेक करेगी. एक आपकी लिसनिंग स्किल्स, एक आपकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स. लिसनिंग स्किल्स में आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे ऑडियो क्लिप्स के बेसिस पे. एक ऑडियो क्लिप्स दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो आपको आंसर करने होंगे. मोनोलॉग, डायलॉग कंडक्ट किए जा सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी टेस्ट की जा सकती है. रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स आपके एक शॉर्ट नोट राइटिंग लिख के दे देंगे, कोई टॉपिक ऑन स्पॉट दे देंगे जिसमें आपको कुछ पैराग्राफ्स लिखने होंगे. ऐसे राइटिंग भी हो सकती है. कुछ पैराग्राफ दे सकते हैं जिसपे आपको ग्रामेटिकल करेक्शंस करने होंगे. ऑल काइंड्स ऑफ communication skills in written form.
एंड ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स बेसिकली आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, वे ऑफ स्पीकिंग चेक कर सकते हैं, इट मे बी थ्रू अ रिकॉर्डेड ऑडियो। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, हमें सीसेट कैसे क्रैक करना है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आपको ये एग्ज़ाम स्मार्टली पढ़ाई करके क्रैक करना है, ना कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कर लेते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेसिस पे, कंसिडरिंग द करिकुलम बाय ICSI, देन आप बहुत ईजिली ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आपको उन पेपर्स पे कंसंट्रेट करना है जो पेपर्स आपकी स्ट्रेंथ हो। 4 तरह के पेपर्स हैं इसमें, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट है, लीगल एप्टीट्यूड और करंट अफेयर्स है। जिसमें इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट और लीगल एप्टीट्यूड वाला जो सिलेबस है वो आपने 12th में मोटा मोटा किया होगा पहले से ही। सो इफ होल्ड ऑन दीज टॉपिक देन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 2 पेपर्स। एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो वो आपके एड ऑन पॉइंट्स हैं। तो you need not to work very hard on those points because that is already inbuilt in your personality and can't be created within a period of 2 to 3 months, right? So अगर आपकी strength है वो then well and good। अगर आपकी strength नहीं है, English, communication skills, current affairs ये आपकी strength नहीं है, then please concentrate on paper 3 and paper 2 and paper 3। Before having the detailed discussion on papers, we'll first understand the general things which you need to do to start preparing for CSET। First thing is that सब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रेफरेंस मटेरियल क्या होगा। जैसे ही वो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने जाते हैं उनके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम रेफरेंस मटेरियल क्या यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको कोई रेफरेंस मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली ICSI के स्टडी मटेरियल को रेफर करिए, वो मोर देन इनफ है। एंड फॉर डिटेल अंडरस्टैंडिंग यू कैन फॉलो सम सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स। अदरवाइज ICSI स्टडी मटेरियल इज मोर देन इनफ। हाँ, एक गाइडलाइंस इशू की है ICSI ने फॉर द CSET, उसको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसमें क्लियरली सब कुछ मेंशन है सिलेबस के बारे में, what ICSI expects from the students, everything. So that guideline should be thoroughly studied। सब स्टूडेंट्स पूछते हैं कितने घंटे हम पढ़ाई कर सकते हैं CSET क्लियर करने के लिए। सो ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी अगर आपको 1 या 2 महीने में प्रिपरेशन करनी है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। और एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करती है ICSI बिफोर दिस CSET, तो आप प्लीज मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज these mock tests are not mandatory for the students but are very good in giving them experience about how they'll attempt the computer based test। So mock test should a very important thing which every student must do before giving CSET। अब हम आते हैं पेपर 1 में आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में। इसके 4 पार्ट्स हैं, एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, कम्युनिकेशन, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। सो ये 4 बहुत ही जनरलाइज कंसेप्ट है, बहुत ही जनरलाइज चीज़ें हैं बिजनेस कम्युनिकेशन में। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश आपकी ग्रामर वो क्या आप ये सब टेस्ट करेगा। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस और कम्युनिकेशन जो है आपकी जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, नॉट कि आपकी सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स जो कॉर्पोरेट्स में यूज़ होते हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंसेस, लेटर्स हो गए, ड्राफ्ट्स हो गए, मिनट्स हो गए, नोटिस हो गई, ये सब की ड्राफ्टिंग एंड स्किल्स चेक करेगी ICSI आपके इस पेपर में। और कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज, अगर किसी की इंग्लिश नहीं अच्छी है, अगर किसी के इंग्लिश पे बहुत अच्छा कमांड नहीं है, तो ये कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ये आपका सेवियर होगा इस पेपर के लिए। अब हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, एक लीगल एप्टीट्यूड और एक है लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड में भी उन्होंने लीगल रीजनिंग इंक्लूड की हुई है। सो लीगल एप्टीट्यूड पेपर का जो एक्सपेक्टेशन है आपसे
वो सिर्फ ये है कि आपका लीगल बेंट ऑफ माइंड कैसा है, यही चेक करना है आईसीएसआई को। आपकी लीगल रीजनिंग स्किल्स कैसी है, और एक बहुत जनरल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ क्रिएट करना है एट एन एंट्री लेवल। तो जब वो स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल में जाएगा तो उसे लॉ पढ़ने में कोई इश्यूज ना हो। दिस इज द बेसिक इंटेंट ऑफ पेपर 2। इसमें आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स होंगे। एलिमेंट्स ऑफ जनरल लॉज में उन्होंने सिर्फ इंक्लूड किया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट्स एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। कुछ एलिमेंट्स कंपनी सेक्रेटरी लेजिस्लेशन के हैं ताकि आप अपने प्रोफेशंस के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में जानकारी रख पाएं। एंड एक कंपनी लॉ का बहुत बेसिक सा आउटलाइन है विच विल हेल्प यू इन CS एग्जीक्यूटिव, अंडरस्टैंडिंग कंपनी लॉ इन CS एग्जीक्यूटिव। और लीगल रीजनिंग, आपका लीगल बेंट ऑफ माइंड, कोई केस, कोई सिचुएशन, कोई इंटरप्रिटेशन वाली चीज़ें दी जाएंगी जो आपका लीगल अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा। और फिर सेकेंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का। इसमें फ्रेंड्स बहुत बेसिक लॉजिकल रीजनिंग्स आएंगी। इट इज़ नॉट कि आपको बहुत हाई लेवल का, जैसे बैंकिंग और इसमें बहुत हाई लेवल की रीजनिंग होती है, इट्स नॉट दैट। बहुत प्रॉपर बेसिक लॉजिकल रीजनिंग आएगी एंड उसके लिए स्टडी मटेरियल में क्लियरली दिए हुए हैं क्या आ सकता है आपके लॉजिकल रीजनिंग में। तो आपको सिर्फ उसी पैटर्न पे उसी पैटर्न पे प्रैक्टिस करना है, ना कि आपने पूरा वाइड एक लॉजिकल रीजनिंग का बुक लेके यू हैव प्रैक्टिस्ड एवरीथिंग। नो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यू जस्ट नीड टू स्टिक टू योर स्टडी मटेरियल बाय ICSI, दैट्स इट। पेपर 3 इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक इकोनॉमिक्स जिसमें आपका बेसिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल अकाउंटिंग, इंडियन यूनियन बजट, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंडियन इकोनॉमी ही इंक्लूडेड है। बट इसमें जो 2 हैं, बेसिक्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नेशनल इनकम, ये ऑलमोस्ट आपने 12th में पढ़ चुके हैं एंड यहाँ पर सिर्फ आपको रिविजन करना है। बट बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी आएंगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप बस याद कर लें और आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो। इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड लेसर एकेडमिक। सो यू नीड टू हैव अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंसेप्ट्स। उसके अलावा इन्होंने यूनियन बजट, फाइनेंशियल मार्केट्स और इंडियन इकोनॉमी इंक्लूड किया है। इट इज़ नॉट वेरी डिटेल्ड बट यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट्स इट। इस पेपर का जो सेकंड पार्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें आपको बेसिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंट्रोडक्शन है। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी लिमिटेड and if understood and studied thoroughly you can easily gain this 25 marks. And last paper है आपका करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, जिसमें MCQ पैटर्न में सिर्फ करंट अफेयर्स आएगा। और ये करंट अफेयर्स भी वाइड करंट अफेयर्स नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स रिलेटिंग टू इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी, बट बेसिकली द बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट्स पे ही जो करंट अफेयर्स है वही आएंगे। सो आप इसके लिए ICSI का स्टडी मटेरियल भी रेफर कर सकते हैं और कोई कॉमन बिजनेस स्टैंडर्ड या कोई भी न्यूज़पेपर्स जो बिजनेस न्यूज़ को कवर करता है आप वो रेफर कर सकते हैं, दैट्स इट। और यहाँ तक आपकी प्रेजेंटेशन कम्युनिकेशन स्किल्स की सवाल है। आप बहुत ज़्यादा इस पर वर्क नहीं कर सकते हैं 1-2 महीने में, बट येस यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, यू कैन बी मोर understanding and while attempting this vivos, and this will enable you to get at least 15 or 20 marks out of 30. So it is on an average you can easily secure 100 to 150 marks if you concentrate more on paper 2 and 3, less on paper 1 and 4. And again I'm saying that will again depends on your skills. If the person is having good communication skills, good English skills, then they can concentrate more on paper 1 and 4 and less on